Greetings to all of you. You all are most welcome. Me myself, your teacher Nagin Singh, and you are studying on online platform of a very prestigious coaching, L1 coaching, and we were studying about the resonance. This is lecture number 11. So in previous lecture we have seen the one of the beautiful concept, how resonance and inductive effect together play the role in deciding the acidic strength, stability of carbocation, carbon ion. So it's very very beautiful to understand and to go through all those ideas and then arrange them. So first of all, I will have a quiz for you, and then we will discuss acidic strength. First of all, I will give you a quiz where we will see the stability of carbocation as we have seen in the previous lecture. You just give the answer and we just check it out whether you have done practice or not. But I believe you all are very nice one. I mean दिल जीते बैच लाइक है ना बच्चों. हर्ष, भूषण, आयुष, अजय, कुनिका, पवन, आदित्य, everybody is here. So welcome to all of you, and today we will see acidic strength, acidic nature of alpha hydrogen, active methylene compound, and basic strength, and different organic reactions or behavior which might be governed by because of these impacts. Okay, so let's see. Let's start with the quiz. Hello, is everyone ready, guys? Shreya, Rimjhim, Pavan, Aditya Yadav, everyone. Are you all ready for quiz? Let's start with. Okay, it's a beautiful question, and you all know the concept behind these problems. So arrange in decreasing stability order. Keep in mind, we have to arrange them in decreasing stability order. Decreasing stability order. Okay, so please arrange them. Solve these problems by having in mind inductive effect, aromatic, anti-aromatic, non-aromatic, conjugation, and due to bend orbitals a special kind of delocalization. That's all. Sometimes people used to say it as a dancing resonance like phenomena. So just by using all those factors, arrange them in decreasing stability order, and time is now I start the time, and it will be 60 seconds for you. So time starts now. Oh my god, Vishwajit has done already. क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस. This one is F. बहुत बढ़िया यार. सक्षम, विश्वजीत, अनंत, वेरी नाइस फॉर ऑल ऑफ यू. तुम लोग बहुत बढ़िया बच्चे हो, सही में दिल जीते हो यार तुम लोग. अगर तुम लोग अपना यूज कर लिए सही से ना, तुमको भगवान ने जितना समझ और बुद्धि दिया है, अपना सही से यूज कर लिए, तुम लोग टॉप भी कर सकते हो. यू कैन बी अमंग टॉप 150 or 10 students of the India. But for that you have to believe on yourself as well as on the practice. Now time is over. Being emotional, I have just said some very inspirational thing for you guys. The kind of capacity God Almighty has blessed you all. If you explore yourself, then you might be under 100 rank, under 50, under 10 rank of the country. But for that you have to believe first on us, then on yourself, and third on your practice. Do the practice as much as you can, but not hard work. No, don't do hard work. Just do by zeal, do by passion, do by ecstasy. मज़ा आना चाहिए. डू बाई रैप्चर. आपको मज़ा आ रहा है करने में, यो जस्ट खो रहे हो. सवाल बनाओ, आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं. आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू. ग्रेट यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. नाउ लेट्स सी. द मोस्ट स्टेबल इज डी. इट्स बिकॉज इट्स एरोमेटिक. एरोमेटिक है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी. इट इज़ नोन एज ट्रोपाइलियम आयन. I have already discussed, I have already conveyed you the name, but
again tropylium ion, it's aromatic, and then F is aromatic. Okay, F is also aromatic. So if both are aromatic, then why D is more stable? Because here beside aromaticity, it's a more extended conjugation, as well as here we can see the angle strain, but their angle strain will be less. Angle strain will also be here, but it's less extent than this one. So conjugation is more, angle strain is less, so obviously stability of D will be more than that of F. Okay, bachcho. Now we know stability of E. I have discussed with you that E is even more stable than A. I have taken this topic very extensively. Just acknowledge you with different prospect causing, because of angle strain, the orbitals of this are bent and in such a way that they overlap with each other, and kind of extended delocalization, sometimes a very funny name, dancing resonance assigned for that, coined for that. But dancing resonance is not a name which is given in chemistry or IPSC. So extended resonance takes place and it's more stable than this one. Do you all remember it? Hello guys. E is more stable than A. So most stable is D, then F, and then E, obviously. Now let's discuss about B and C. It's very important, and for this question is devoted to these only two parts. So because of pi bonds, stability will decrease. That's very obvious, because pi bonds, loose bonding, less overlapping, so less attraction, so pi electrons are more energetic and more reactive and less stable. It's very clear, है ना? Great. आप सभी लोग रिस्पॉन्स भी करते रहो. सो लिसन, यहाँ दो पाई बॉन्ड है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, राइट? बट यहाँ पाई बॉन्ड की वजह से स्टेबिलिटी कम जितनी होती है, सबसे बड़ा रीजन जो है स्टेबिलिटी घटाने का, ये वैकेंट ऑर्बिटल है. हियर इट्स अ वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ भी वैकेंट ऑर्बिटल है. ये वैकेंट ऑर्बिटल्स की वजह से ज़्यादा अनस्टेबल है, और इस वैकेंसी को ये दो पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं जो कि उसके स्टेबिलिटी को भरपाई कर रहे हैं. ऑल्दो दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, बट इसके एंटी एरोमेटिक होने से क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जेटिक ऑर्बिटल में चले गए. बट इस सिस्टम की स्टेबिलिटी किसकी वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब है? इस वैकेंसी की वजह से. हेलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो बी की स्टेबिलिटी सी से ज़्यादा हो जाती है, जो ये अनस्टेबल होने का बहुत बड़ा रीज़न था. आई मीन इट्स अ कैंसर लाइक, ये कैंसर है, दोनों खांसी है, तो खांसी को थोड़ा बढ़ा दिया, वो दिन भर वो खांस रहा है, लेकिन कैंसर को भी फ़ायदा पहुंचा दिया. मतलब कैंसर को फ़ायदा पहुंचाया, खांसी को बढ़ा दिया कि भैया हम पहले से राहत में हैं, ये खांसी हम खांस लेंगे लेकिन हम कम से जान तो रहे हमारा. तो दिस वन इज मोर ग्रेवफुल प्रॉब्लम, ग्रेवफुल, कष्टदायक, तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको कार्बोडाइन चेक करना पड़ेगा, और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए बी इज मोर स्टेबल देन सी. अगर यहाँ एक पाई बॉन्ड होता तब भी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती, अब दो पाई होता तब ये इसकी स्टेबिलिटी ओवरटेक कर लेता. इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बच्चों मैंने क्या बताया, द मोस्ट स्टेबल इज डी क्योंकि वो एरोमेटिक हुआ. देन सब लोग, ये मैं क्वेश्चंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ और आपके दिमाग में आइडिया बनवा रहा हूँ कि अच्छा तुमको ऐसे सोचना है. मैं वो बता रहा हूँ जो केमिकली वेरीफाइड है, जो रियली सही है. अब देखो, जैसे मैंने कहा ना कि तुम अपने गांव में रहते हो, तुम्हारे गांव में आसपास में लोग कम आईआईटी निकाले हैं, मेडिकल निकाले हैं, कोई नहीं निकाला है, लोग इतना जानते भी नहीं हो, जानते भी तुम पे विश्वास नहीं करते, क्या ठीक है पढ़ने में, लेकिन इतना भी होशियार नहीं है, और तुम फोड़ दिए, झन्नाटेदार रिजल्ट ले आए, अंडर 10 रैंक, अंडर 50 रैंक, लाइक, या फर्स्ट रैंक. यस यू कैन, यू ऑल आर डिजर्व. अब उसके बाद क्या होगा, वही लोग बोले हैं कि अरे शुरू से जब ये पैदा हुआ इसके दिमाग से रोशनी निकल रही थी, बहुत तेज था, ये पैदा हुआ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी कहते हुए पैदा हुआ था. वही लोग ऐसा बोलते हैं. तो जब चीज़ें तो प्रूफ हो जाती है ना, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसी चीज़ को हम थियोरेटिकली सेटिस्फाई करते हैं. यस इट्स ट्रू. सो बच्चों, डी वाला मोस्ट स्टेबल, इट हैज़ बिन फाउंड, देन एफ एरोमेटिक, देन ई, देन ए ऑब्वियसली. और इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों ने गलतियाँ किया है, और ये गलतियाँ करना कोई बुरी बात नहीं है कि बी की स्टेबिलिटी सी से ज़्यादा होगी, बिकॉज कार्बोडाइन इज वेरी लेस स्टेबल, एंड दैट कार्बोडाइन is supported by these pi electrons, so it stabilizes by these pi electrons, and that is absent here, and therefore B will be more stable than C.
इज इट क्लियर टू एवरीवन? मजा आ गया? बताओ भाइयों और बहनों, बच्चा लोग, गांव वालों, बताओ, इज इट क्लियर? ग्रेट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नाउ एसिडिक स्ट्रेंथ, ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू टू ऑल। नाउ एसिडिक स्ट्रेंथ, छोटी सी बात है, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन देंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। ये लोग जानते हैं बच्चों, है ना? कोई भी यार देखो, ये सिंपल सा कोई भी एसिड है, कोई भी, मैं पर्टिकुलर एग्जांपल क्यों लूँ, लेट्स टेक अ वेरी, आई हैव डिस्कस्ड दिस थिंग। अब ये एसिड है बच्चों, तो ये अगर ये टूटेगा तो A माइनस और H प्लस, मैं फिर से इसको रिपीट मार रहा हूँ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। तो भाई ये है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है, तो इसकी H प्लस तो एसिड में निकलना है ना? H प्लस तो एसिड में निकलना है, इफ इट इज प्रोटिक एसिड। अगर लुईस एसिड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो बच्चों इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, मोर स्टेबल, उतना रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, उतना Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, और रिएक्शन आगे शिफ्ट करेगा तो हमें H प्लस ज़्यादा मिलेगा, एंड दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड। अब इसकी स्टेबिलिटी देखो निगेटिव है, तो स्टेबिलिटी इज ऑफ दिस वन, स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, तो जितना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो भी इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे वो स्टेबिलिटी को घटाएंगे। भाई मैंने फिर बोला, एसिड और बेस के सारे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होते हैं। ऑल रिएक्शंस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर आर इन इक्विलिब्रियम, and therefore more the stable of this product, more will be reaction shift toward forward direction, and that's why the property will be satisfied. So here in case of acid, A minus की stability, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जितना ज़्यादा होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, बात समझ में आई तो हाँ बोलना जरूरी है रे पगलों। बच्चा लोग, बात समझ में आते ही जितना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तो एसिडिक कैरेक्टर को घटाएगा। बच्चा लोग फटाफट आंसर करते रहना है। एक छोटा सा मासूम सा सवाल मैं आपको दे देता हूँ, बहुत ही मासूम सवाल, और आपको उनको एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। Arrange in increasing acidic strength order. Okay, just do it. Increasing acidic strength order. Arrange in increasing acidic strength order. Okay, time is 45 seconds. Come on everyone, your time starts now. गुड, बढ़िया, अच्छी कोशिश शुरू कर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। सबके आंसर्स आने चाहिए भाई, कोई छूटना नहीं चाहिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 3, 2, 1 एंड टाइम ओवर। आप लोगों ने बड़ा ही अच्छा कोशिश किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। सुचिस्मिता, अजय, पवन, शिवम, सक्षम, आदित्य, वेरी नाइस फॉर ऑल ऑफ यू, ग्रेट। लेट्स सी नाउ बच्चों, इसके पीके की वैल्यू पता है आपको कितना होता है? 10.0। इतना आसान है कि याद ही हो जाता है, नहीं? पीके की वैल्यू मैंने ऐसे हीरो बनने के लिए लिख दिया है यार, हीरो क्या बनना है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसके पीके की वैल्यू कितना? 10.0। तो पीके की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है एसिडिक एसिड उतना कम होता है। तो ये बहुत ही गधे एसिड है फेनोल में, बहुत बड़े एसिड नहीं है, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। लेट्स सी, देखो ये क्या, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा तो एसिडिक कैरेक्टर घटाएगा। ये क्या लाता है बच्चों? प्लस आर और माइनस आई, लोन पेयर है ना यहाँ पे, और प्लस आर ज़्यादा है। ओ माई गॉड, क्या कर रहा है ये?
क्या कर रहे हो छोरे, तू इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, क्योंकि ऑर्थो पे है ना यार, ऑर्थो पे है तो ऑर्थो पे प्लस आर लगता है। ये कहाँ लगा है, ओह माय गॉड, ये तो मेटा पे लगा है बच्चों, ये तो मेटा पे लग गया भाई। तो मेटा पर सिर्फ क्या लगेगा, माइनस आई। मेटा पर प्लस आर इफेक्ट बताओ लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, नो, क्रॉस कर दो, नहीं लगेगा। तो ये माइनस आई लग रहा है, ये देखो कितना मज़ेदार है ना बच्चों, इतना खूबसूरत है यार। समय समय की बात है, नहीं समय समय की बात क्या है, वही OCH3 जब ऑर्थो पे लगा था तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटा रहा था, वही जब मेटा पे लगा तो सिर्फ माइनस आई काम कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम कौन हो गया 2, फिर 1 का कुछ नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा 3, आंसर इज 213, 213। सबसे कम कौन होगा 2, घट गया, फिर 1 कुछ नहीं हुआ, और 3 का सबसे ज़्यादा, आंसर इज 213। मैं देख रहा हूँ सारे बच्चों ने सही किया है, मज़ा आ गया भाई, क्या बात है। तो हम लोग समझ गए एसिडिक स्ट्रेंथ की बातें। अब चलिए झन्नाटेदार सवाल बनाया जाए, ठीक है। और इसमें कई तरह से घुमा घुमा के सवाल बनाया जाता है। जब मैं सवाल पूछूं आपसे तो ध्यान रखना कि नाग सर सवाल पूछते हैं, अगर बाबा नागदेव अगर सवाल पूछते हैं तो वो सिर्फ सवाल नहीं होता, वो उनका आशीर्वाद भी होता है। उस सवाल के पीछे कुछ रहस्य होते हैं। जब तुम्हें लगे कि कुछ नई बात मिल गई तो उसको अलग से नोट कर लेना है, राइट, इंटरटेनमेंट बॉक्स में भाई, ठीक है। श्रेष्ठ, वेरी गुड, कुलदीप, आदित्य, लेट्स ट्राई। तो इट्स अ क्विज टाइम बच्चों, आर यू ऑल रेडी नाउ? इट्स अ क्विज टाइम ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, जस्ट बाय यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डिफरेंट फैक्टर्स। ओहो ग्रेट, कम ऑन। तो आपके स्क्रीन पर ये रहा सवाल, तो चलो, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अभी हमने डिस्कस किया तो ये आपको हेल्प करेगा जल्दी से सॉल्व करने में। एंड टाइम इज 45 सेकेंड्स, आप जल्दी से कर लोगे। वी हैव सीन सम ऑफ इट्स पार्ट, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी कर दो आंसर। अरे कहाँ गया रे, हाँ ये हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बच्चों कमान, चलो 15 सेकंड और बढ़ा दिया, आंसर फेंको यार, क्या कर रहे हो? मैं गाना गाने लगा, तुम लोग तो काम ही नहीं कर रहे हो, करो भाई। चलो लास्ट 5 सेकेंड्स, 3, 2, 1 एंड टाइम ओवर। गुड गुड, बढ़िया। रिमझिम, श्रेया, विश्वजीत, पवन, अनंत, शिवम, श्रेष्ठ, कुलदीप, वेरी नाइस, अजय, गुड। चलो तब देख लिया जाए, है ना बच्चों। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। सुचिस्मिता, कुनिका, लेट्स सी। लग रहा है आप लोगों को ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट आ गया है, लेकिन मैं मेरी बात को ध्यान देना। देखो हम लोग जो बोलते हैं ना, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे थोड़ा ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है समझ लो, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे थोड़ा ज़्यादा मेरा। जब तुम पैदा हुए थे ना तो मैं IIT में एडमिशन ले लिया था, ऑलमोस्ट। कोई घोटाला किया होगा 1-2 साल आगे पीछे होगा। तो मतलब ये है कि हम जो बोलें उस पर तुम आंख मूंद के विश्वास करो। तो हम क्या कह रहे हैं कि सवाल खूब बनाओ, जितना सवाल बनाओगे उतना तुम एक्सपर्ट हो जाओगे। जानते हो, कोई एक विद्वान ने बोला था कि अगर नॉलेज और एक्सपीरियंस में किसी एक को, नॉलेज मतलब बुकिश नॉलेज, और एक्सपीरियंस में किसी एक को प्राथमिकता देनी हो तो किसको दोगे? तो कहते हैं एक्सपीरियंस को। जैसे एक डॉक्टर में MBBS का स्टूडेंट है, मान लो उसने 4, 5, 6 सालों में, 8 सालों में खूब पढ़ाई कर लिया, लेकिन उसने पेशेंट कभी नहीं देखा। और एक आदमी जो है सिर्फ 12th पास करके किसी बड़े डॉक्टर के अंदर में रह के उसने उनसे सीखा और पेशेंट देखता है रोज। पता है दोनों में कौन अच्छा डॉक्टर है? जो एकदम नहीं पढ़ा लिखा है, इसको बॉडी का एकदम नॉलेज नहीं है, बट रोज पेशेंट देख रहा है। दैट्स ग्रेट। इससे शानदार एग्जाम्पल हो नहीं सकता है। तो नॉलेज और एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस दबा देगा, चढ़ बैठेगा, हुमच देगा उसको, किसको? नॉलेज को। तो अगर आप सवाल नहीं बना रहे हैं तो जो 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 अपर हैंड है उसको आप मिस कर रहे हैं।
अगर सवाल बनाओगे तो मान लो तुम्हारी 10,000 रैंक IIT में आनी है तो रैंकों भाग के तुम्हारी 1,000 के अंदर पहुंच जाएगी। मान लो तुम्हारी 2,000 रैंक आनी है 200 के अंदर पहुंच जाओगे, या 500 वाले तो 50 के अंदर आ जाओगे, फर्स्ट रैंक भी आ सकती है। प्रैक्टिस में बहुत पावर है। मेरी बात को और समझने के लिए यूट्यूब चैनल से DKT पर टॉपर्स का इंटरव्यू है, सारे टॉपर्स का, आप उसको सुनिए। सब लोग कहते हैं हमने खूब सवाल की प्रैक्टिस की थी। तो खैर वो वही बातें बोलते जो हम बोल रहे हैं, जस्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो आ जाओ, कमॉन। तो तुम लोग इतने अच्छे हो, तुम प्रैक्टिस कर दिए ना, तुम्हारा इतना शानदार रैंक आ जाएगा कि मैं नाचने लग जाऊंगा, समझ रहे हो, पागल होकर नाचने लग जाऊंगा मैं। कमॉन, ये देखो, इसका तो कुछ है नहीं, यहाँ -i लग रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। ये +r और -i दोनों है, और +r ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ये भी +r और -i दोनों है, +r ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ओके, तो नाउ अगर है ना ऑर्थो और पैरा कंपैरिजन करते हैं तो फॉर दैट वी हैव टू सी इंडक्टिव इफेक्ट। इसका -i ज़्यादा होगा इसके तुलना में, इसलिए B का एसिडिक कैरेक्टर वैसे तो घटा है बट D से ज़्यादा होगा। तो इंक्रीजिंग pKa वैल्यू, सबसे पहले उसको लिखना है इसके pKa वैल्यू कम हो, और pKa कम होगा, देखो मैं कैसे सोचता हूँ, सबसे पहले उसको लिखो जिसके pKa की वैल्यू कम हो, और pKa कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। सबसे पहले उसको लिखना है जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, ओ माय गॉड, C। सबसे पहले C लिखेंगे, फिर A, इन दोनों घटा है और इसका कम घटेगा ना, -i इसका ज़्यादा है, तो B, एंड सबसे नीचे D। बहुत खूबसूरत सवाल है, ये सवाल हो सकता है इस साल परीक्षा में आ जाए, और जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो बच्चे कहते एग्जाम में आ ही जाता है बहुत बार। तो आंसर इज CABD, CABD। सक्षम हो रहा है, बिल्कुल सही किए हैं। मानव गंगवार, मैं सबका देख रहा हूँ यहाँ पे, सब बच्चे सही किए हैं, बहुत बढ़िया। ये हर्ष भूषण ने गलत कर दिया, बेटा इसको करेक्ट कर लेना, सीख लेना बेटा हर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब इस सवाल पे टूट पड़ो और जो बताया उसका सही से यूज करो। कम ऑन गाइज, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, NCERT में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, और इसका मतलब ये नहीं कि इस बार नहीं आएगा। And time is 60 seconds. Your time starts now. अब जब हम लोग फेनोल चैप्टर पढ़ेंगे ना बच्चों 12th का, तो फेनोल में आधा तो यही एसिडिक स्ट्रेंथ सब डिस्कस किया हुआ है, हाँ? ये एनिलिन पढ़ेंगे तो आप बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस किया हुआ है, तो सब पढ़ लिए हम लोग। ग्रेट, चलो भाई फटाफट आंसर फेंको। ये मेरे दोस्त हैं आदित्य, अनंत, विश्वजीत, इन्होंने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। लास्ट 5 seconds, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, अंकित, अजय, कुनिका, अमीशा, सक्षम, पवन, आदित्य, विश्वजीत, ग्रेट, बहुत बढ़िया। रिमझिम, ठीक है। हर्ष भी अच्छा कर रहा है, धीरे धीरे। हर्ष, सबसे अच्छी बात हर्ष तुम में ये है कि तुम किसी कॉपी नहीं कर रहे हो, सब लोग नहीं कर रहे होंगे, मुझे भरोसा है। तुमको जो लगता है सही तुम कर रहे हो, तुम डेफिनेटली सीख जाओगे। जहाँ गलतियाँ उसको अलग से नोट करके सीख लेना है ना बेटा। चलो जल्दीबाजी कुछ नहीं है। NO2 ग्रुप यहाँ पर है बच्चों। NO2 ग्रुप क्या लगाता है, ऑर्थो पे है तो -i -r दोनों लगेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं क्या, अरे बप्पो रे बप्पो, एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी दिस वन, -i इफेक्ट, क्योंकि -r यहाँ लग रहा था, इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा बट उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि यहाँ बढ़ जाएगा। ये पैरा पर है तो -i और -r दोनों, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और बहुत तगड़ा वाला बढ़ेगा, इसका तो वही है। तो सबसे गधा कौन हुआ, ये क्या बताना, इंक्रीजिंग pKa वैल्यू। सबसे पहले उसको लिखना है जिसका pKa की वैल्यू कम हो, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, या तो A का होगा या तो C का होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जिसपे पता है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कई बार हुआ, और तुम जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लोगे, विद्वान हो जाओगे, उसमें 10 साल लगेंगे अभी, तो तुमको मालूम चलेगा दुनिया की बहुत सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी बेस्ड करती हैं, संभावनाओं पे। इसलिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इट्स ए काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वेशन। जो हम सोचते हैं कि सही है
वही चीज़ गलत निकल जाता है, सोचते हैं नहीं हो सकता, वही कई बार हो जाता है, तो फिर उसको जस्टिफाई करते हैं हम लोग। अच्छा, ऐसा नहीं कि उसका होना इज इरेशनल, उसका होना रेशनल है, लॉजिकल है, साइंटिफिक है, बट दैट इज़ नॉट इन द वे वी आर थिंकिंग, दैट है ना, वो जैसे सोचते हैं वैसे नहीं है, डिफरेंट वे। यहाँ क्या हुआ बच्चों, सबसे ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कि ए और सी का एसिडिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ए का होना चाहिए, बिकॉज इसका माइनस आई ज़्यादा है, लेकिन ए का एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा सी से कम हो गया, थोड़ा सा। कोई बताएगा ऐसा क्यों? हेलो गाइस, मैं वैल्यू निकाल दिखाता हूँ तुम्हें, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बताता हूँ तुमको। बताओ भाई, ए का एसिडिक स्ट्रेंथ, थोड़ी इस पर चर्चा करना है, ये एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं। ए का एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा सी से कम हो गया, सी से थोड़ा सा कम हो गया। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ ना, कोई बताएगा मुझे ऐसा क्यों? बताओ। हेलो बच्चों, मैं कुछ तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ ढूंढ रहा हूँ। हाँ उज्जवल, अरे उज्जवल हमेशा कुछ न कुछ खतरनाक कर ही देता भाई। मैं एक्चुअली बच्चों ना पीके वैल्यू खोज रहा हूँ, जहाँ से मैं जस्टिफाई कर सकूँ आपको। हाँ देखो, पीके वैल्यू जो है, मैं भी इंटरनेट से देखा तुम्हारे सामने ही, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल के लिए पीके वैल्यू है 7.23, है ना, और फेनोल का पता है ना, फेनोल का 10.0 होता है। पीके वैल्यू जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और मेटा वाले का 8.35, 8.35, और ये पैरा वाले का है बच्चों 7.14, 7.14। ओके, समझ गए ना मैं क्या बोला? जिसके पीके की वैल्यू कम होगी वही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। मैं तुम्हें कहूँ ना, मैं ऑक्सफोर्ड MIT लाइक इंस्टीट्यूट्स को कॉपी कर रहा हूँ, जहाँ पे बच्चों को वैल्यू दे के सिखाया जाता है। आई जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंटल डेटा अबाउट द पीके वैल्यूज। सो बच्चों, पीके की वैल्यू सबसे कम किसकी है? 7.23 और 7.14 पैरा वाले की है। यस, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही बोला है। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इस हाइड्रोजन को पकड़ लिया है। जब पकड़ लिया तो इसके निकलने की टेंडेंसी और फिर कहोगे जब पकड़ लिया है तो आप सोच सकते हो शायद कि इससे भी कम क्यों नहीं हो गया। इसको मैं डैश डैश से क्यों दिखाया हूँ, बताओ जरा, बोलो। डैश से दिखाया हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड, इट्स ए वीक बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, तो थोड़ा सा इंपैक्ट डालता है, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालता। तो मतलब जो इसके कंपैरिजन में था, जिससे थोड़ा ज़्यादा था, तो घटा के उसे कम कर दिया, है ना बच्चों, ये कम कर दिया। तो 7.23 इसके पीके की वैल्यू उससे ज़्यादा है, तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन होगा? सी। अब बताओ, नहीं भूलोगे तुम लोग ना, कभी नहीं भूलोगे ना, ये एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया हुआ है, एग्जाम से भी आया हुआ है कि पैरा नाइट्रोफेनॉल के पीके की वैल्यू 7.14, यू कैन सी, वो कम है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू, दोनों में अंतर कितना है? 7.14, पॉइंट 09 का अंतर है ना, 0.09, ये 0.09 मतलब समझ में आपको? तो 0.09 मतलब 10 की पावर 0.09, तो बहुत ही कम का अंतर है, बट अंतर है यहाँ पर। तो C इज स्ट्रॉन्गर एसिड, देन ऑब्वियसली A, और फिर B आएगा -I की वजह से, और फिर D आएगा। तो गलती एग्जाम में क्या होता है, A और C को लेके मैंने इतना चर्चा कर दिया कि गलती आपसे होनी नहीं चाहिए बच्चा लोग। गुड गुड, पवन, रिमझिम, ये लोग कह रहे हैं गलती हमसे नहीं होगी, बाकी लोग गलती करोगे क्या? समझ में आया बच्चों? ए का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होना चाहिए था कंसिडरिंग -I इफेक्ट, बट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट जस्ट होल्ड हाइड्रोजन, it just causes friction to hydrogen from removal as a proton. Good, thank you to all, and therefore the acidic character will be little bit less than that of para. Okay, para substitution, great. तो चलो अगला सवाल किया जाए। 4 नंबर यहाँ से ले लो भाई, 4 नंबर हम लोग का हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू ऑल रेडी? अगला सवाल किया जाए। अमीषा दीदी, राजेश यादव, कम ऑन, लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके स्क्रीन पर है। ये
ले ये तो बहुत बेइज्जती हुई यार, प्रॉब्लम नहीं बल्कि कुछ और ही है। चलो बाय द वे मैं हीरो बन रहा था, है ना, मैं स्टाइल मार रहा था, ये प्रॉब्लम देखो है ही नहीं। एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ माइनस आर ग्रुप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यार। हेडिंग में पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ माइनस आर ग्रुप। माइनस आर ग्रुप का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसका एसिडिक नेचर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, माइनस आर ग्रुप, ये CO माइनस आर ग्रुप बच्चों, यस, मतलब इधर कुछ भी लग दो आप। और इसके जो कार्बन है इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। यहाँ जो हाइड्रोजन हो क्या बोलेंगे उसको, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? सो दिस वन इज अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, अल्फा बीटा गामा, ये उसके पापा पर डिपेंड करता है। अगर उसके पापा अल्फा हैं तो ये अल्फा हाइड्रोजन, पापा बीटा है तो बीटा हाइड्रोजन, गामा है तो व्हाटएवर। तो मैं क्या, इसका हेडिंग क्या है, हेडिंग है बच्चों कि जो माइनस आर ग्रुप है, कौन सा, माइनस आर ग्रुप, उसका अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक है। क्यों, आओ देखते हैं हम लोग एसिडिक क्यों है बच्चों। अगर मैं इसका रिएक्शन करता हूँ, लेट्स सी बच्चों, अगर मैं इसका रिएक्शन करता हूँ क्या, H+ को निकाल दूँ, H+ को निकाल दूँ, माइनस H+ करता हूँ, तो भाई मैंने बताया ना आपको कि एसिड और बेस के रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होते हैं। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। तो आप क्या करोगे, थोड़ी देर मैं आपको 40 सेकंड का टाइम दूंगा। आप क्या करोगे, आप इसमें से H+ निकालोगे, यहाँ प्रोडक्ट बनाओ और चेक करो कि क्या प्रोडक्ट इस माइनस आर के होने की वजह से स्टेबल है क्या। एंड इफ इट इज ट्रू देन यू विल से कि सर मैं समझ गया। आप यहाँ रिस्पॉन्स करोगे मैं समझ गया। तो व्हाट यू विल डू, यू जस्ट एलिमिनेट दिस H एज H+ and then here form the product. What product will be that you have to do it, and then check it out about the stability of that product. If that would be stable, then the stability will increase, enhance the acidic character of alpha hydrogen. Just do it. Time is 40 seconds, and after completing just say yes I have done it, I am understand. Come on. चलो H+ निकाल के देखो भाई, आप क्या करोगे, H+ निकाल के बनाओ। मैं चाहता हूं तुम अपने दिमाग को चलाओ, एक्सपीरियंस लो। हमने सीखा है एक्सपीरियंस नॉलेज से ज़्यादा बेहतर है। एक्सपीरियंस लो, जस्ट डू इट। सब लोग ट्राई मारना है, जैसे बोलो वैसे टूट पड़ा करो। मेरी बात को पत्थर की लकीर की तरह मानो। लास्ट 3 seconds 2 1 एंड टाइम ओवर। आई थिंक आप सभी लोगों ने एक्सपीरियंस ले लिया है ना, गुड। गुड, आनंद जी कह रहे हैं समझ गया, वेरी नाइस। कुलदीप, अमीशा, ग्रेट। तो चलो लेट्स सी, मैं बना दिखाता हूँ बच्चों। यहाँ से H+ हमने निकाल दिया, ये बन जाएगा हमारा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया, ये H+ गया है ना, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया बॉन्ड का तो माइनस आ गया, यहाँ कार्बन आयन बन जाएगा। हियर वी विल हैव कार्बन आयन H+। नाउ लेट्स सी द स्टेबिलिटी ऑफ दिस वन। देखो किसी दोस्त ने बोला कि ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस में है, लेट्स ड्रॉ इट। लोन पेयर पाई बॉन्ड, लोन पेयर पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड लोन पेयर। बच्चों ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है कि नहीं बताओ, एवरीवन प्लीज टेल मी। हियर वी हैव 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सो ये 1 और 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस है कि नहीं, कम ऑन एवरीवन प्लीज टेल मी गाइस, कम ऑन डू फास्ट रिस्पॉन्स हियर। आर स्ट्रक्चर 1 and 2 आर इन इक्विवेलेंट रेजोनेंस और नॉट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मेरे बहकावे में तुम लोग नहीं आए। किसी बच्चे ने गलत कर दिया था, ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस में बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखो पावर है तुम्हारी, तुम मेरे बहकावे में नहीं आए, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल। ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस में नहीं है, बट यू नो ये C पे माइनस चार्ज था। अब देखो ये CO ग्रुप जो है, जो CO ग्रुप बच्चों, वो -I और -R इफेक्ट लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन को खींच के स्टेबलाइज कर दे रहा है। हो माय गॉड, गुड ऋतिक, वेरी नाइस। अनुदीप, राजेश, पलक, ये इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ ले गया। हो माय गॉड, सी, इसने स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। क्यों? -I और विशेषकर -R की वजह से। -R इज ए स्ट्रॉन्गर इफेक्ट हियर
एंड देयरफॉर इसलिए ये स्टेबल हो गया। तो ये स्टेबल कैसे हुआ है? जब ये अल्फा हाइड्रोजन निकला है, एंड देयरफॉर इट्स एसिडिक। सो अल्फा हाइड्रोजन ऑफ -R ग्रुप्स विल बी एसिडिक। ये हेडिंग को तुम नोट बना के अलग से लिख लो कि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ -R ग्रुप्स विल बी एसिडिक, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। किसका? -R ग्रुप का। और उसकी वजह से बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, दैट विल सी। नोट कर लिया आप लोगों ने? जिसके पास जिस -R के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा उसमें एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा। क्यों? कि ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन फॉर्म्ड इन प्रोडक्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ H+, है ना। ना अब कुछ बातें और नोट कर लिए बच्चों। देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है बच्चों, कमॉन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर इकट्ठा कर लो भाई। अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो एक बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन देता है, उसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। अब जब मैं आपको एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाऊंगा तो आपको ये बात तुरंत रिस्पॉन्स करनी होगी। इसका मतलब जानते हो रिएक्शन कैसे होता है? बेस से ट्रीट करने पर, तो बेस से ट्रीट करने पर कार्बोनिल कंपाउंड अगर अल्फा हाइड्रोजन रखा है तो एल्डोल कंडेंसेशन देता है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या? कहें गुरुजी अगर कोई कहे सर आप हमारे साथ रहे ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बत दिया। अब मैं उसके साथ तो हूँ, कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो मेरे साथ में होने का मतलब क्या है कि मैं उसको केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, मोटिवेट करूँ, पॉजिटिविटी क्रिएट करूँ। अब मैं जब भोंदू टाइप में चला गया तो हाउ इट वर्क्स? तो हियर द मीनिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट जस्ट द काउंटिंग but its acidic character. So because carbonyl compound possess alpha hydrogen which possess acidic character, and if you treat with the base there is a very good reaction that is called aldol condensation will takes place. It's a very important reaction. तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देगा या नहीं देगा, तो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? आप पता करोगे कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल कंडेंस, तुम देखो तुम्हें ये नहीं पता कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, तुम्हें ये नहीं पता ये रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, नथिंग, बट नाउ you know little bit about that. You know that there is some sort of acid base reaction takes place in basic medium, and therefore we need to have a acidic alpha hydrogen should be there. And if the carbonyl compound possesses that hydrogen, in that case the aldol condensation reaction will takes place. That's great. बच्चों अब पॉइंट नंबर दूसरा देखो, अगर कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और उसको अगर आप बेस से ट्रीट करते हो, एक इसका जोड़ीदार दूसरा खूबसूरत रिएक्शन, अरे बाप रे बाप, ये दोनों कभी न कभी हमेशा आते ही रहते हैं, कौन वो आएगा तो नहीं, वो ऐसे रहते हैं। इसका नाम है कैनी-जेरो रिएक्शन। ओ माय गॉड, कैनी-जेरो रिएक्शन। सो अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो बेस और एल्डोल कंडेंसेशन, और नहीं है तो बेस की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। अब बेस की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा तो कैसे बिहेव करेगा? तो ये बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। भाई OH माइनस बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों हो सकता है। इफ इट बिहेव एज अ बेस देन द रिएक्शन विल बी एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? उसकी पत्नी नहीं है, उसकी प्रेमिका नहीं है। कौन है उसकी प्रेमिका? अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। अब एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं है तो बेस कैसे बनेगा? तो बेचारा मुंह मार के मजबूरी में न्यूक्लियोफाइल बन गया, एंड द रिएक्शन विल बी कैनी-जेरो रिएक्शन। दैट्स अ ग्रेट। सो कैन वी ऑल ट्राई द प्रॉब्लम लाइक दिस कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल देगा, कौन सा कैनी-जेरो? गाइस नोट कर लो बच्चों, जिस कार्बोनिल के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा एसिडिक वो देगा एल्डोल कंडेंसेशन, और जिसके पास नहीं होगा वो देगा कैनी-जेरो रिएक्शन इन सेम कंडीशन। बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग सवाल ट्राई करते हैं। एक और बता दूं क्या तुम लोगों को, जनता की भारी डिमांड पे बस मजे लो। मैं तुम्हें बताऊं ना, तुम जिंदगी में कभी मेहनत मत करना। मेहनत जानते हो क्यों आता है शब्द? जब हम कोई ऐसा काम करें जो काम करने में मन नहीं करता। जब मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, शायद तुम्हें लग रहा हो कि सर को तो बहुत मज़ा आ रहा है, सर तो मेहनत नहीं कर रहा। मैं रियली मेहनत नहीं कर रहा।
तो मैं वेट करता हूँ क्लास का कि क्लास लेना यार, कितना मज़ा आएगा, यू नो। ऐसे ही ना तुम मज़े लोगे तो टाइम का पता नहीं लगेगा, बहुत पढ़ लोगे, दिमाग पे अच्छा इफेक्ट जाएगा। एंड देयर इज़ अ हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, इट इज़ कॉल्ड डोपामिन। डोपामिन, ये बायोलॉजी वाले बहुत जानते होंगे, डोपामिन। यू नो इसका नाम डोपामिन क्यों पड़ा? ये हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर, हमारे दिमाग में सेक्रेट होता है और हर नर्व्स के पास जाता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, और पूरे बॉडी में पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, ये प्लेजर क्रिएट करता है, पाने की ललक क्रिएट करता है। ग्रेट है यार ये डोपामिन। कई वेजिटेबल्स वगैरह में पाया जाता है, लेकिन आप खुश रहोगे और अच्छी मेंटलिटी बनाओगे, पॉजिटिव बातें करोगे, गाना गाओगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। These hormones will secretes from your body for your neurons and will let you fill with the positivity, passion, zeal, enthusiasm, you know, everything else. So dopamine, it's a chemical. केमिकल की बात आएगी देखो तो हम लोगों को आना पड़ेगा, फिर वहाँ किसी की औकात नहीं है। ये एथिलमीन और 3,4 हाइड्रोक्सी, दिस इज डोपामिन। इसको देखा, मुझे मज़ा आया। ये अमीन कैटेगरी का है, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, इट्स नेम इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन है, जो हमको बॉडी में पॉजिटिविटी बना के रखता है। देखो कभी यार ना गाना सुने तो मस्त मन करता है और पढ़ें, अब एक्टिव हो जाए, खुश हो गया, अच्छा हो गया, क्या चेंज हो गया। अगर तुम दुखित रहोगे तो सब चीज़ें निगेटिव आती है। इस नेम इज 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिन इथाइल अमीन, इट्स डोपामिन। और इसको यू नो डोपामिन कहाँ से आया? डी यहाँ से, ऑक्सी वाला ओ यहाँ से, डी यहाँ से लिया, ओ यहाँ से लिया, डोप प यहाँ से लिया और अमीन यहाँ से लिया, इट्स डोपामिन, प्रोनाउंस लाइक डोपामिन, है ना। कितना अच्छा है ना, खूबसूरत। ये कहते हैं कि प्लेजेंट और खुश जीवन बनाता है, जीवन के प्रति अच्छी सोच लाता है, काम के प्रति पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, पाने की इच्छा रखता है। दैट्स ग्रेट। चलिए, तो मैं मस्ती वाली बातें कर ली आपसे। देखो मस्ती चल रहा था अभी मेरा, है ना। मज़ेदार है ना बच्चों, ये गाँव वालों, मज़ेदार है कि नहीं डोपामिन? चलो कम ऑन, लेट्स डिस्कस अबाउट थर्ड एस्पेक्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का तीसरा बात देखते हैं जो बहुत खूबसूरत है। एक रिएक्शन है बच्चों, अलग अलग इसको नोट कर लेना। अरे बाप रे बाप, मैं पूछूंगा तुम्हें झपाट से जवाब देना है। ये सर पढ़ाएं आप, तो इसका नाम है HVZ रिएक्शन। ये फुल फॉर्म हुआ, 3 साइंटिस्ट हैं, हेल, ये सब हमारे सिलेबस में है, उल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ओह माय गॉड, हेल उल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड? बताओ। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी देगा, जैसे CH3CH2COOH, तो ये जो है देगा। इसको देखो, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन। इसको अगर हम लोग रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन से ट्रीट कर दें या क्लोरीन से ट्रीट कर दें, सिर्फ 2 से, तो अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा। वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि H+ के फॉर्म में है ना बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है उसमें। वहाँ पर हाइड्रोजन चला जाएगा, बन जाएगा CH3CHBr, अल्फा रिप्लेस हो गया और बन जाएगा COOH। मैंने आपको रिएक्शन बहुत कुछ नहीं पढ़ाया, बट कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दिया हूँ। मोटी मोटी चीज़ें क्या है बच्चों? इसका एक तो नाम बताया, कौन देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जिसमें मैं पूछूं आपसे कि फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड देगा क्या? बोलोगे नहीं। क्यों? कि यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? बच्चों बोलते रहना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो HVZ रिएक्शन विल नॉट गिवन बाई फॉर्मिक एसिड। और मैं कहूँ आपसे, कैन बेंजोइक एसिड गिव दिस रिएक्शन? बेंजोइक एसिड नो, बिकॉज यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है वहाँ पर, ये भी नहीं देगा। तो भाई बहन, स्कूलमेट, क्लासमेट को मेरा जो है कि ज्ञान बांटते चलो वाले परंपरा पे चलोगे तो याद हो जाएगा तुमको, ठीक है। तो वी नाउ जस्ट लिटिल बिट नो अबाउट द वेदर द मॉलिक्यूल इज कैपेबल और नॉट टू गिव एल्डोल कंडेंसेशन, टू गिव कैनिजो रिएक्शन एंड टू गिव HVZ रिएक्शन। ओके, so let's see it now, the question time. Hey,
Are you all ready? It's a question time, quiz time. Okay, so let's see this problem. Okay, which of the following have acidic alpha hydrogen? Come on, and time is 60 seconds, so that you all can answer. Time is 60 seconds. Time starts now. Find the molecules which have acidic alpha hydrogen. Come on, everyone. Good. बहुत अच्छे. Last 10 seconds. Come on, guys. Last 5 seconds. 4, 3, 2, 1 and time over. That's great. बहुत बढ़िया. बहुत अच्छा कोशिश किया आप लोगों ने. बहुत बढ़िया. तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों C6H5CHO. ये आपको याद भी हो जाना चाहिए. You can count here that it's a benzaldehyde, don't it? It's a benzaldehyde having alpha carbon, but you can see they count the valency of carbon here 1, 2, 3 and 4. All valencies are complete, so it will not form. It don't possess, doesn't possess alpha hydrogen, so it can't give aldol condensation. और ये अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं रखा है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. ये बेचारा फॉर्मल्डिहाइड, अल्फा कार्बन ही नहीं है कि नहीं बच्चों? HCOH. बताओ, यहाँ एक ही कार्बन है, कोई बगल में कार्बन है ही नहीं. ओ माय गॉड, इट्स हाईली मिजरेबल. CH3OH, यहाँ तो कोई -R ग्रुप है ही नहीं. CH3CHO, CH3 एसिटल्डिहाइड. व्हाट इज एसिटल्डिहाइड? इट्स बच्चों, यू कैन सी इट्स -R ग्रुप, अल्फा कार्बन इन हाइड्रोजन. यहाँ तो है. तो क्या है, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही किया है. सबके सबने सही किया. सक्षम, शिवम और फिर सुंदरम बोल दूँ क्या मैं? अनुदीप, कुनिका, विश्वजीत, राजेश, एवरीवन. वाओ, पवन, सबने सही किया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आजा भाई फटाफट, जल्दी जल्दी करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन? देन जस्ट थिंक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म and have the answer. Just drain answer from there, guys. Extract answer from there. Just think about the stability of the anion formed in the this reaction, acidic reaction. Come on, everyone. And time allotted is 60 seconds. I have given more time just so that you can form the product and see about. You can just focus about the stability of carbon ion formed. Your time starts now. बना के चेक करो स्ट्रक्चर भाई बच्चों. रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, राही राही. लास्ट 5 seconds. 4, 3, 2, 1 and time over. That's great. बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत ही शानदार कोशिश किया है. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. गलती भी हुआ होगा तो सीखने ही तो जा रहे हैं. क्यों? हमेशा, अनंत, शिवम, श्रेष्ठ, श्रेया, हर्ष, भूषण, आदित्य, एवरीवन, कुलदीप, सबने किया है. लेट्स सी बच्चों, आपका निगाह शायद डी की तरफ नहीं गया क्या? आपने इसका स्ट्रक्चर ध्यान नहीं दिया. CH2COO C2H5
और इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं COOC2H5, इसके दो मॉलिक्यूल्स है बच्चों। ओहो, यहाँ क्या हुआ, यू कैन सी, अगर हम इस H+ को निकालते हैं, जो कि निकालने वाले हैं, इट्स अल्फा टू बोथ आर माइनस आर, दिस वन इज माइनस आर, दिस वन इज ऑल्सो माइनस आर, बोथ आर माइनस आर ग्रुप्स। अगर इसको निकालें क्या बन जाएगा, लेट्स सी बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH माइनस COOC2H5 एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो COOC2H5। सो यू कैन सी, आप देख सकते हो बच्चों कि इसका जो निगेटिव है वो इधर भी माइनस आर के इन्फ्लुएंस में और इधर भी माइनस आर के इन्फ्लुएंस में है। ऐसा मत कर देना कि सर दोनों तरफ से खींचेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नालायक, ये कोई वेक्टर वोक्टर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है, खींचा जा रहा है। वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड इन द वे दैट हियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा घट जाएगा दोनों तरफ से खींचने की वजह से, और इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दो माइनस आर ग्रुप्स आ गए, ओ माय गॉड, यू कैन सी ये दो माइनस आर ग्रुप आ गए। ओह, ये यहाँ पर एक माइनस आर इधर और एक माइनस आर इधर, बीच में CH2 ग्रुप, इसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तो एसिडिक है ही नहीं, यहाँ है, ठीक है, ज़्यादा है, Cl2 की वजह से ज़्यादा हुआ है इसका, यू ऑल आर करेक्ट, बट इफ़ यू कंपेयर विद दिस वन देन ऑब्वियसली दिस विल ओवरटेक, D विल सबड्यू B एंड A इज ऑब्वियसली लेस देन, A में तो और भी कम हो गया बच्चों ने, CH3 क्या लगा रहा है, प्लस आई, कम कर देगा। यहाँ कार्बन आयन कैसा बनेगा, CH3, ये सब बातें समझते जाना है, ये सब सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसका क्या लग रहा है, प्लस आई, तो ये तो माइनस आर जो कर रहा है तो घटा रहा है भाई, ये Cl2 दो लग गए तो बढ़ा रहे हैं, ये घटा रहा है, ये बढ़ा रहा है, ये तो बेचारा नंगा है, कुछ है ही नहीं, और यहाँ दो माइनस आर लग गए, बाप रे बाप, इसलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। आंसर इज डी। बताओ सबको समझ में आ गया, जल्दी रिस्पॉन्स करो गाइज, गाँव वालों, मेरे लाडलों लाडलियों, आंसर करो जल्दी से। समझ में आया, इसको अलग से नोट कर लेना है कि ओ दो माइनस आर लग गया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया यार, तुम लोग सब लोग समझ गए इसको, तो बहुत बढ़िया, ग्रेट। पलक दीदी समझ गई, उज्ज्वल आनंदी समझ गए, बहुत बढ़िया। अब जब समझ गए तो इससे क्या शिक्षा मिलती है, व्हाट लेसन वी कैन एक्सट्रैक्ट ना, लेट्स टेक इट। ये है कि बच्चों CH2 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मेथिलीन ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, मेथिलीन, CH2 इज कॉल्ड मेथिलीन ग्रुप। अगर ये दो माइनस आर ग्रुप से अटैच हो, अगर ये दो माइनस आर ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर है, ऐसे मेथिलीन को बोलते हैं हम लोग कि अरे इसका हाइड्रोजनवा तो बड़ा एक्टिव हो गया, कहते हैं इसका हाइड्रोजन, इस मेथिलीन का हाइड्रोजन बहुत एक्टिव हो गया। क्या है भैया, कि दो माइनस आर से अटैच है वो, H+ कह रहा भैया हमके निकलेगा, H+ हंगामा ना मचाया भाई घर में अपने, कह रहा हमको निकलेगा भैया, कि काहे कि हम निकलेंगे तो जो कार्बन आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, आप खुश रहिए, हमको निकलने दीजिए। ये बहुत एक्टिव हो जाता है, और ये एक्टिव इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव मेथिलीन। और ऐसे कंपाउंड जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड। मैंने आपको चुपके से पढ़ा दिया क्या, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, ये बाबा नागदेव का स्टाइल है, कहानी में पढ़ाता रहता हूँ मैं, कहानी में पढ़ा दिया मैं, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें CH2 ग्रुप मीन्स मेथिलीन ग्रुप इज अटैच्ड फ्रॉम बोथ साइड्स बाय माइनस आर ग्रुप, एंड देयरफॉर इट्स नॉट नेसेसरी कि दोनों माइनस आर एक ही हो, नो, माइनस आर बदल सकते हैं। ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रॉन पूलिंग टेंडेंसी जितना ज़्यादा होगा तो इसकी आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एंड देन दैट्स व्हाई दिस एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। बच्चों एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सुचिस्मिता दीदी, श्रेष्ठ भैया, अंकित भैया, पवन भैया, बताओ बच्चों, अरे दवा बोल, चलो। तो ये हमारा टॉपिक क्या है, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया कि CH2 दोनों साइड से माइनस आर ग्रुप से अटैच है, ये एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, CH2 इज नोन एज मेथिलीन कंपाउंड, ओके। द कंपाउंड possesses such a structure, good, wow, great, wonderful, amazing, fabulous,
Okay, now let's try the problem. It's quiz time. Come on, be ready. Which of the followings are active methylene compound? Which of the followings are active methylene compound? See, and time allotted, time granted is, chalo, 60 seconds. This one is first question of this type. Time starts now. बताओ तो. इनमें से एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड कौन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड? गुड, बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हो आप लोग, क्या बात है. लास्ट 5 सेकेंड्स. 4, 3, 2, 1 एंड टाइम ओवर. बहुत अच्छा कोशिश किए हो, बहुत बढ़िया. या क्या बात है, वेरी नाइस. तो मैं देख रहा हूँ आंसर्स बड़े अच्छे अच्छे आए हैं इसमें. आई अप्रिशिएट यू गाइज रिस्पॉन्स. श्रेया, शिवम, उज्ज्वल, रिमझिम, अमीशा एंड एवरीवन. लेट्स सी. ये CH2 ग्रुप जो है बच्चों, मिथिलिन ग्रुप, इधर कौन लगा है? NO2. इधर कौन है? CN. चच्चा, CN जानते हो ना? C अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन. ओ माय गॉड, कार्बन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन. कैसा ग्रुप है ये? -R ग्रुप. ये क्या है बच्चों? CH2 है ना. इधर कैसा हुआ? NO2. ये दोनों ही -R ग्रुप हैं. ये क्या हो जाएगा? एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड. आंसर ए तो बिल्कुल परफेक्ट है यार. बी की बात करते हैं. इधर तो -R है CHO, बट ये तो Cl-I है. नो, दोनों -R होने चाहिए, है ना बच्चों. सी की बात करते हैं तो CH2 देखो ये दोनों -R है, बोथ आर -R, बट ये CH2 इट्स नॉट जस्ट CH2. ये दो CH2 आ गए. ना 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 ना, अगर यहाँ माइनस आएगा तो इसके कंजुगेशन में होगा ही नहीं. बट यहाँ देखो, ओहो, ये देखो ये CH2 जो है ये दोनों तरफ से -R के इन्फ्लुएंस में है. ओके, तो ये इधर भी और इधर भी, तो आंसर डी भी सही है ना बच्चों. तो आंसर विल बी A and D. बोथ आर एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड. शिवम ने सही किया, अजय बिंद ने सही किया है, श्रेया ने सही किया है, रिमझिम ने सही किया. बहुत बढ़िया. सो इज इट नाउ क्लियर टू एवरीवन? एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड. oh you can miss, you might be confused over this structure, that it's two -R groups, but here it's CH2, so it's not methylene, दो कार्बन हो गया. and here it's okay because here NO2 CN both are -R groups. Here this one is -I, only this one is -R, but here both are -R groups, and here in between we have CH2 group. okay. ग्रेट, बहुत बढ़िया. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करो. बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन है. एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड को ध्यान में रखते हुए सवाल बनाया गया है. देखते हैं आप लोग क्या सोचते हो. गलतियां कर सकते हो, गलतियां करना मतलब कोशिश करना सही करने का. गलत हो जाए तो कोई बात नहीं ना, आप तो सीखने वाले हो. ठीक है, हमें कहा उन्हें मैं सिद्ध पुरुष हूं, मैं जो बोलूँ उसको फॉलो करना है बस. पत्थर की लकीर की तरह. क्यों कर रहे हैं? तो नाक सर बोले इसलिए कर रहे हैं बस. चलो तो ट्राई करो. टाइम इज 45 सेकेंड्स. वेरी इजी. लेट्स टेक 60 सेकेंड्स. टाइम स्टार्ट्स नाउ. और रिएक्शन करने के बाद लिख देना कंप्लीट हो गया.
लास्ट 3 2 1 टाइम ओवर। कर लिए बच्चों, डन, कंप्लीट, डन 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 डन। अरे यार क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो क्या हुआ, ये Na प्लस NH2 माइनस, ये बच्चों बेस, ये हाइड्रोजन कैसा होगा, एसिडिक, ये NH2 माइनस H प्लस को ले जाएगा, क्या बनाएगा, अमोनिया प्लस। जब H प्लस चला जाएगा क्या बचेगा बच्चों, CH माइनस, फिर हो जाएगा COOC2H5 का होल ट्वाइस, राइट। और ये माइनस यहाँ Na प्लस आ जाएगा, Na प्लस सॉल्ट बन जाएगा। अब C माइनस क्या है बच्चों, ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दिस हाइड्रोजन। वाई, बिकॉज ऑफ इट इज फ्लैंक्ड विद 2 माइनस R ग्रुप्स। ओके, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। मैं बताऊँ आपको एक बात, अभी एक लड़का मुझे मतलब बाहर से कॉल आया, मेट्रो सिटी से, एक बहुत ही अच्छे हैं उनके पिताजी, मेरे जानने वालों में से, कहे कि सर मेरे बच्चे को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, आप हेल्प करिए। मैंने देखा उस बच्चे को ऑर्गेनिक के बेसिक रिएक्शन से प्रॉब्लम थी, बहुत मुश्किल था उसको, मतलब चीज़ें नहीं पता थी। वो फिटजी में एडमिशन लिया था दिल्ली में, तो ओके, मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी कोचिंग, उसका कुछ रहा होगा, प्रॉब्लम रहा होगा, कोचिंग का नहीं, वो नहीं ध्यान दिया होगा, फिजिक्स मैथ्स में ज़्यादा फोकस किया होगा, जो भी है, बट उसको प्रॉब्लम थी। जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया था, एडवांस के लिए एलिजिबल था बाद में, और फिर जस्ट इन कुछ दिनों में हमने उसको इस पर फोकस कराया, इन आइडिया। तो जितना आप लोग अच्छा ट्राई कर रहे हो, इतना भी अच्छा ट्राई नहीं कर पा रहा था, बट वो पता है धीरे धीरे सीखा, मेहनत किया और मुझे फॉलो किया, मुझे अच्छा लगा। उस बच्चे में बड़ी अच्छी बात थी, गुड वर्च्यू, उसके संस्कार अच्छे हैं, तो जो बोला वो किया उसने, डेडिकेशन अच्छा था, तो IIT में सेलेक्ट हो गया। तो आप लोग जैसा कर रहे हो ऐसा भी नहीं कर रहा था वो, थोड़ा मिसिंग था, लेकिन बट उसके बाकी पार्ट्स ठीक रहे होंगे। तो मतलब ये है कि आप लोग जो कर रहे हो वो इतना एबव एवरेज है कि अगर आप क्वेश्चन ट्राई करते हो घर जाके, रेजोनेंस पढ़ा रहे हो ना, रेजोनेंस की वाट लगा दो, इसके पहले जो पढ़ाया ना उसकी वाट लगा दो, फिर देखो तुम्हारा क्या होता है, फोड़ दोगे। ओके, जस्ट डू इट। तो बच्चों देखो ये NH3 ये बन गया, NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, H प्लस ले जाएगा, ये पूरा बन गया। C माइनस थे वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, C माइनस इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अभी क्या करेगा, C माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और Cl को भगा देगा, एंड Cl माइनस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ये पूरा यहाँ जाए कनेक्ट हो जाए, क्या बन जाएगा ये CH3 CH2, और उसके बाद क्या होगा ये ग्रुप CH COO C2H5, C2H5 का होल ट्वाइस। ओके, तो ये देखो ये यहाँ कौन सा रिएक्शन हुआ, SN रिएक्शन। देखो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, निकल गया, ये C माइनस बना, इससे वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देगा, इसको भगा देगा, हमको मिल जाएगा। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। समझ में आया बच्चों, कितने लोग सही किए थे, मजा आया आप लोगों को सबको, कितना खूबसूरत है ना, टाइम हो गया, गुड। सो अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, कार्बोनिक कंपाउंड्स हैविंग एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन कैन गिव एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डिहाइड डिवॉइड ऑफ, जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, कौन, एल्डिहाइड, नॉट कार्बोनिक कंपाउंड। सिर्फ एल्डिहाइड काइनेज जरूर रिएक्शन देते हैं, कार्बोनिक कंपाउंड का ही सबसेट है एल्डिहाइड, है ना। तो जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो काइनेज जरूर रिएक्शन देगा, और जिसके पास, जिस कार्बोनिल कंपाउंड के पास, मतलब चाहे कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, हमने पढ़ा हुआ है। ओके ओके, नाउ कंप्लीट दिस क्वेश्चन, कम ऑन, एक दो सवाल और बना देते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन, क्विज टाइम है गाइस, कम ऑन, बी एक्साइटेड, incite yourself. Which of the following कार्बोनिक कंपाउंड्स कैन गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया और सारी परीक्षाओं में, अब बताना है इनमें से कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस देंगे। टाइम इज 60 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ, 60 सेकेंड्स। गलत हुआ कोई बात नहीं, बट सीख तो गए बेटा, है ना, ठीक है, बनाओ इसको। तो इनमें से कौन कौन से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस देंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1 एंड टाइम ओवर। देखो खूबसूरत बात क्या है, जीओसी पढ़ने की अच्छाई क्या है, तुमने एल्डोल कैनिजो रिएक्शन नहीं पढ़ा, बट एग्जाम देने गए तुम जेई और नीट का या कहीं पेपर ट्राई कर रहे हो, उसमें या इनमें से कौन एल्डोल देगा या कैनिजोर देगा? तो जो एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजोर देगा, जिस कार्बोनिल के पास अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल देगा, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन है वो HPZ देगा। तो यू कैन आंसर, यू कैन स्कोर नंबर, है ना, यू कैन स्कोर मार्क्स फ्रॉम देयर। ये नहीं देगा, क्यों? यहाँ अल्फा कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है, ये देगा। एसिटल्डिहाइड, ये मैंने नाम देके सवाल पूछा क्योंकि आजकल ये पैटर्न में है। देखो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, देगा। फॉर्मल्डिहाइड, वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ एटलीस्ट दिस मॉलिक्यूल्स, ये अल्फा कार्बन नहीं है। एसीटोन, एसीटोन इज CH3COCH3, यहाँ अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, बिल्कुल बिल्कुल है साहब, बी भी है, ए नहीं है। व्हाट अबाउट डी? बेंजोफेनोन, बेंजोफेनोन, यू नो बच्चों दिस वन इज बेंजो एंड हियर अनदर ग्रुप लगा दो ऐसे ही, इट्स बेंजोफेनोन, यहाँ पर नहीं है, तो आंसर इज बी एंड डी। अब ये सवाल एग्जाम में आ सकता है और एग्जैक्टली यही सवाल इन्हीं ऑप्शंस के साथ में एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो मतलब तुम गए और पेपर में यही आ गया, कैसे आप तो पेपर आउट करा दिए थे, वही तो बोल रहा हूँ, जो मैं करा रहा हूँ यही एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। एक सवाल हो क्या आते क्या लास्ट 1 मिनट में बच्चों? अच्छा चलो रहने दो, आ जाओ आकाश, आकाश आ जाओ। तो बच्चों, तो फिर आज के लिए हमारा आखिरी कंटेंट रहा एंड तुमको बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ना था, जो मैं अगली क्लास बताऊंगा आपको। मुझे उम्मीद है जब टीचर पढ़ाने में एंजॉय करता है ना, तो ये ना बोथ वे होता है, इट्स म्यूचुअल, तो बच्चों को भी ज़रूर अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है आज ये क्लास आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा, कॉन्सेप्ट बना होगा, स्पेशली एसिडिक स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने वो पढ़ा था, और हमने पढ़ा अल्फा हाइड्रोजन, एल्डोल, कैनिज़ेरो रिएक्शन, है ना बच्चों, HVZ रिएक्शन के विषय में पढ़ा हमने, फिर सवाल ट्राई किए, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स वी हैव सीन, इट्स टू अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर लिखिएगा, कमेंट मुझे बहुत पसंद है, मैं पढ़ के अपनी अगली क्लास को प्लान करता हूँ। तो जितने बच्चे क्लास किए सबके कमेंट्स मुझे चाहिए होंगे, और आप क्वेश्चन बनाते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहो, फिर इंप्रूवमेंट जरूर होगा। मिलते हैं इस क्लास में, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।